وادی کشمیر کی آزادی کے لیے کوشش، ایک مجاہد کی سنسنی خیز داستان آپ کے لیے پیش خدمت ہے مشن کشمیر۔ ہم گوروں کے قبرستان کی دیوار کے ساتھ چل رہے تھے۔ قبرستان کے پیچھے آ کر ہم دیوار سے ہٹ کر سامنے کی جانب جہاں اندھیرے میں بڑے بڑے پتھر نظر آ رہے تھے، ان پتھروں کے درمیان سے گزرنے کے بعد اورنگزیب کا خچر ایک طرف کو مڑ گیا۔ سامنے ایک ٹبا سا بنا ہوا تھا۔ رات کے اندھیرے میں وہ مٹی اور پتھروں کا ایک بہت بڑا ڈھیر لگ رہا تھا۔ ہم خچروں سے اتر رہے تھے کہ ٹبے کے پیچھے سے کمانڈو رحیم نکل کر ہماری طرف آیا اور بولا، سر آ جائیں۔ مٹی اور پتھروں کے ٹبے کے اندر ایک کوٹھری بنی ہوئی تھی۔ کمانڈو رحیم نے جلدی سے کوٹھری کا دروازہ کھول دیا۔ اندر ایک لیمپ جل رہا تھا، ایک پرانی چارپائی پر بستر بچھا تھا، ایک پرانا لحاف بھی تھا۔ اورنگزیب نے لڑکی کو چارپائی پر لٹا کر لحاف اوپر ڈال دیا۔ ہم نے جھک کر لڑکی کو دیکھا، اس کا سانس چل رہا تھا مگر وہ ابھی تک بے ہوش تھی۔ اس نے لڑکی کے ہونٹوں پر چپکی ہوئی ٹیپ کھینچ کر اتار دی۔ لڑکی کے ہونٹ لیمپ کی روشنی میں سفید سفید نظر آ رہے تھے۔ اورنگزیب نے کمانڈو رحیم سے پوچھا، تہ خانے میں کوئی اچھا سا بستر بچھانا تھا اور وہاں لحاف کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ رحیم بولا، میں نے نیا بستر لگایا ہے اور 2 کمبل رکھ دیے ہیں، اسے نیچے لے آئیں۔ کوٹھری کی دیوار میں ایک چھوٹا سا دروازہ تھا جس کے آگے چارپائی کھڑی کر کے رکھی ہوئی تھی۔ رحیم نے دروازہ کھول دیا، وہاں سے ایک زینہ نیچے جاتا تھا۔ رحیم پہلے نیچے اتر گیا، میں اور کمانڈو اورنگزیب اوپر کھڑے اندھیرے میں زینے کو دیکھ رہے تھے۔ زینے میں ہلکی سی روشنی ہوئی۔ رحیم نے تہ خانے میں دیا جلا دیا تھا۔ اس نے نیچے سے آواز دی، سر اسے لے آئیں۔ میں نے آگے بڑھ کر بے ہوش لڑکی کو کندھے پر اٹھا لیا اور کمانڈو اورنگزیب کے پیچھے پیچھے زینہ اتر کر نیچے آیا تو دیکھا کہ نیچے جو تہ خانہ تھا وہ اوپر والی کوٹھری سے 2 گنا بڑا اور کشادہ تھا۔ اس کی چھت بھی اونچی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اصل مقصد اس تہ خانے کی تعمیر تھی۔ اوپر والی کوٹھری محض دکھاوے کے لیے بنائی گئی ہے۔ تہ خانے میں ایک جانب دیوار کے ساتھ لگی ہوئی کچھ رائفلیں نظر آئیں۔ ایک بڑا سا پلنگ تھا جس پر صاف بستر بچھا تھا اور 2 کمبل پڑے تھے۔ میں نے لڑکی کو پلنگ پر لٹا دیا۔ کمانڈو رحیم نے جلدی سے دونوں کمبل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے اور لڑکی کے اوپر ڈال دیے۔ میں نے کمانڈو رحیم سے کہا، کلوروفارم کچھ زیادہ ہی سنگھا دیا تھا۔ وہ بولا، کچھ لڑکی کا جسم بھی کمزور ہے، کوئی بات نہیں، ابھی ہوش آ جائے گا۔ وہاں 2-3 مونڈھے پڑے تھے۔ ہم مونڈھے کھینچ کر بیٹھ گئے۔ کمانڈو اورنگزیب نے گہرا سانس لے کر کہا، خدا کا شکر ہے ہمارا مشن کامیابی سے مکمل ہو گیا۔ میں نے کہا، مجھے نہیں امید کہ ابھی تک وہاں کسی کو لڑکی کی گمشدگی کا علم ہوا ہو۔ علم ہو بھی گیا ہوگا تو اب ہمیں ان کی فکر نہیں، ہم ان کی پہنچ سے نکل آئے ہیں۔ کمانڈو اورنگزیب نے رحیم سے پوچھا، تمہارے دوسرے ساتھی کہاں ہیں؟ یہاں ہمارے جانے کے بعد کیا تم اکیلے پہرا دو گے؟ کمانڈو رحیم نے کہا، ان دونوں کی اتنی ہی ڈیوٹی تھی سر، وہ چلے گئے ہیں۔ ان کی جگہ یہاں صبح ہمارا ایک بوڑھا ساتھی اپنی بیوی کے ساتھ آئے گا۔ وہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر چلا جائے گا۔ عورت ہوشیار ہے اور سمجھدار ہے، وہ لڑکی کے پاس تہ خانے میں رہے گی، میں اوپر پہرا دوں گا۔ ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ یہ ویران جگہ ہے، ادھر کوئی نہیں آتا، کوئی آیا بھی تو شک پڑنے پر یہاں سے زندہ واپس نہیں جا سکے گا۔ یہاں قبرستان میں بہت سی پرانی قبروں کے گڑھے ہیں، ہم اسے وہاں دبا کر اوپر قبر بنا دیں گے۔ کمانڈو رحیم ہنسنے لگا۔ اورنگزیب بڑے سنجیدہ چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ کمانڈو رحیم کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ ہم نے اپنی سٹین گنیں ایک طرف رکھ دیں، پستول اپنی اپنی بیلٹوں کے ساتھ لگے رہنے دیے۔ چاروں ہینڈ گرینیڈ نکال کر کمانڈو رحیم کو دیے۔ کلوروفارم کی شیشی بھی اورنگزیب نے نائلون کی رسی کے ساتھ اس کے حوالے کر دی۔ ہم نے اپنی جیکٹوں کے زپ آگے سے کھول دیے اور نقاب والی ٹوپیاں سر سے نیچے کر رکھی تھی۔ میں نے گھڑی دیکھ کر کہا، ابھی رات کا 1 بھی نہیں بجا۔ کمانڈو اورنگزیب ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ہمارا یہ کمانڈو آپریشن اپنے مقررہ وقت کے اندر ختم ہوا ہے۔ بے ہوش لڑکی کے منہ سے ہلکی سی کراہ نکلی۔ ہم جلدی سے اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ اسے ابھی پوری طرح ہوش نہیں آیا تھا۔ اس پر کلوروفارم کے بعد کی نقاہت طاری تھی، اس کی آنکھیں بند تھیں۔ ہم لڑکی کو تہ خانے میں چھوڑ کر اوپر والی کوٹھری میں آ گئے۔ کمانڈو رحیم کہنے لگا، سر آپ آرام کریں، میں باہر پہرا دوں گا۔ وہ کوٹھری کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ سٹین گن اس کے پاس ہی تھی۔ میں اور کمانڈو اورنگزیب چارپائی پر بیٹھ گئے۔ میں نے اس سے پوچھا، کل کا کیا پروگرام ہوگا؟ وہ بولا، ہمیں کچھ دیر کے لیے اسی جگہ روپوش ہو کر رہنا ہوگا، یہ محفوظ جگہ ہے، لیکن کل کسی وقت میں بریگیڈیئر کو گھر پر فون کرنے کے لیے یہاں سے نکلوں گا۔ ہمیں فون پر اس کو بتانا ہوگا کہ اس کی بیٹی ارملا ہمارے پاس ہے اور اس کی عزت و ناموس کے ہم ذمہ دار ہیں۔ پھر اس سے ارملا کے بدلے حاجی صاحب کی بیٹی پروین کی رہائی کے بارے میں سودا کرنا ہوگا۔ میرا خیال ہے وہ ضرور مان جائے گا، اسے ماننا ہی پڑے گا۔ بات ہی ایسی ہے، کیا پروین کو ہم یہاں وصول کر کے خود سری نگر لے جائیں گے؟ میرے پوچھنے پر اورنگزیب نے کہا، ہم یہ غلطی کبھی نہیں کریں گے۔ پروین کو بریگیڈیئر مکھرجی خود اپنی حفاظت میں سری نگر پہنچائے گا۔ جب ہمیں اطلاع مل جائے گی کہ پروین اپنے ماں باپ کے پاس پہنچ گئی ہے، تب ہم بریگیڈیئر مکھرجی کی بیٹی اس کے حوالے کریں گے۔ ہم اس ترپ کے پتے کو یوں ہی ضائع نہیں کر سکتے۔ اس موضوع پر کچھ دیر گفتگو کرنے کے بعد ہم وہیں ادھر ادھر پڑھ کر سو گئے۔ اس وقت باہر دن نکل آیا تھا جب کمانڈو رحیم نے ہمیں آ کر جگایا اور کہا، سر ہمارا بوڑھا کشمیری ساتھی اپنی بیوی کو لے کر آ گیا ہے۔ وہ دونوں کوٹھری میں ایک طرف بیٹھے تھے، دونوں کی عمریں بڑھاپے کی سرحد کو چھو رہی تھی۔
औरत भारी बदन की सेहतमंद कश्मीरन थी। उसने सर पर रुमाल बांध रखा था। उसका नाम सुगरा था। हमने सुगरा के खामद को वहीं से वापस भेज दिया। सुगरा मूढ़े पर चादर ओढ़े बड़े इत्मीनान से बैठी थी। मैंने रहीम से पूछा, नीचे उर्मिला को होश आ गया है क्या? वो बोला, सर 2 घंटे पहले मैं नीचे जाकर देखा आया था, वो सो रही थी। औरंगजेब बोला, तुम उसके नाश्ते वगैरह का बंदोबस्त करो, हम नीचे जाकर उसे देखते हैं। मैं और कमांडो औरंगजेब तहखाने में आ गए। तहखाने में दिया रोशन था। उर्मिला होश में आ चुकी थी और पलंग पर बैठी फटी फटी नजरों से फजा में तक रही थी। हमें देखते ही वो सिसकियां भर कर रोने लगी। बोली, तुम लोग मुझे कहाँ लाए हो? तुम जरूर कश्मीरी अगरवादी हो, भगवान के लिए मुझे कत्ल न करना। वो रोए जा रही थी। हम मूंढे खींचकर उसके करीब होकर बैठ गए। कमांडो औरंगजेब ने कहा, मिस उर्मिला, हम कश्मीरी दहशतगर्द नहीं हैं, हम कश्मीरी मुजाहिद हैं। तुम्हें हम तुम्हारे बेडरूम से इसलिए अगवा करके लाए हैं कि तुम्हारे पिताजी ने हमारे एक शरीफ आदमी की बेटी को अगवा किया हुआ है। हम तुम्हारे फादर को फोन करने वाले हैं। हम तुम्हारे बदले अपने बुजुर्ग मुजाहिद की मासूम बेटी परवीन को वापस लेना चाहते हैं। उर्मिला का उर्दू बोलने का लहजा बंगाली था। वो बोली, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, मुझे मेरे घर पहुंचा दो प्लीज, मेरे परसों इम्तिहान शुरू होने वाले हैं। वो रोए जा रही थी। मैंने जरा सख्त लहजे में कहा, तुम्हारे रोने का हम पर कोई असर नहीं होगा। जिस तरह तुम किसी बाप की बेटी हो, उसी तरह परवीन भी किसी बाप की बेटी है। तुम्हारे पिताजी ने परवीन को अपनी फौजियों की मदद से अगवा करके फौजी छावनी में कैद कर रखा है। वो कॉलेज में प्रोफेसर है। क्या परवीन के बाप को बेटी के अगवा का दुख नहीं होगा? उर्मिला ने साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछते हुए कहा, तुम मुझे छोड़ दो, मैं पिताजी से कहकर परवीन को रिहा करा दूंगी। मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, पिताजी मेरी बात जरूर मान जाएंगे। कमांडो औरंगजेब ने फैसला कुन अंदाज में कहा, माय डियर लेडी, एक बात को याद रखो, जब तक हमारे मुजाहिद की बेटी परवीन हमें वापस नहीं मिलेगी, हम तुम्हें तुम्हारे बाप के हवाले नहीं करेंगे। उर्मिला पढ़ी लिखी समझदार बंगाली लड़की थी। उसने पूछा, और अगर पिताजी न माने तो फिर तुम क्या करोगे? कमांडो औरंगजेब ने कहा, ये हम उस वक्त सोचेंगे। अभी तुम उठकर मुंह हाथ धो लो, ये सामने गुस्ल खाना है। तुम्हारी मदद के लिए एक औरत तुम्हारे पास आ रही है, वो तुम्हारा ख्याल रखेगी। तुम्हें दूसरे कपड़े भी मिल जाएंगे। इस बात का मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि यहाँ तुम्हारी इज्जत आबरू इसी तरह महफूज रहेगी जिस तरह तुम्हारे अपने घर में है। हम मुसलमान कश्मीरी मुजाहिद हैं। इस्लाम हमें औरतों से, चाहे वो काफिर औरतें हों, इज्जत और एहतराम के साथ पेश आने की हिदायत करता है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ से कभी फरार होने का ख्याल दिल में न लाना। ये ऐसी जगह है कि तुम कयामत तक बाहर नहीं निकल सकोगी। हमारे कमांडो चारों तरफ पहरा दे रहे हैं। ये कहने के बाद हम उठकर ऊपर आ गए। औरंगजेब ने सुगरा से कहा, बीबी, कमांडो रहीम ने इस लड़की के बारे में तुम्हें सारी बात समझा दी होगी। सुगरा बोली, हाँ बेटा, मुझे सब मालूम हो गया है, तुम फिक्र न करो, मैं लड़की की पूरी हिफाजत करूंगी। ये देखो। उसने अपने लंबे फर्न की जेब में से एक छोटा पिस्तौल निकाल कर दिखाया। ये भरा हुआ पिस्तौल मैंने अपने पास रख लिया है। इस पिस्तौल के होते हुए लड़की फरार होने का सोच भी नहीं सकती। मैंने कहा, लड़की बंगालन है और कमजोर जिस्म की है, वो ऐसी कोशिश नहीं करेगी। बहरहाल तुम्हें हर वक्त चौकस रहना होगा। तहखाने का दरवाजा हर वक्त बंद रखना होगा। वो कहे भी तो उसे ऊपर हरगिज नहीं आने देना। रहीम और हमारे साथी ऊपर पहरे पर मौजूद रहेंगे। सुगरा नीचे तहखाने में चली गई। थोड़ी देर बाद रहीम नाश्ता ले आया। चाय के साथ बंद थे। हमने नीचे उर्मिला के लिए भी नाश्ता भिजवा दिया और खुद भी कोठरी में बैठकर नाश्ता करने लगे। चाय की एक एक प्याली पीने के बाद हम कोठरी से बाहर खुली फजा में आ गए। रात को बारिश हुई थी। जमीन और बड़े बड़े पत्थर गीले थे। आसमान उसी तरह अब्रालूद था। मामूली सी फुहार पड़ रही थी। हम टब्बे की एक तरफ होकर दरख्त के नीचे बैठकर सिगरेट पीने और बातें करने लगे। हमारा अगला ऑपरेशन निहायत अहम था। हमें मालूम था कि अब तक ब्रिगेडियर को अपनी बेटी के अगवा का पता चल चुका होगा और शिमले की फौजी छावनी और गैरिजन में फौज अलर्ट हो गई होगी। तुम्हारा क्या ख्याल है कि ब्रिगेडियर ने अपनी बेटी की अगवा की रिपोर्ट्स मिलिट्री पुलिस को दे दी होंगी? औरंगजेब ने कहा, मामला बहुत संगीन है। उसने शिमले में तैनात पूरी फौज को अलर्ट कर दिया होगा। मिलिट्री पुलिस ने, जहाँ तक मेरा ख्याल है, शिमले की पूरी नाकाबंदी कर ली होगी। हमें दूर गोरों के कब्रिस्तान की दीवार के साथ साथ एक आदमी अपनी तरफ आता नजर आया। उसने चादर ओढ़ी हुई थी। हम जल्दी से कोठरी में चले आए। कमांडो रहीम कोठरी के दरवाजे की अंदर की जानिब मौजूद था। उसने हमें आता देख लिया था। कमांडो औरंगजेब ने उससे कहा, एक आदमी इधर आ रहा है, मालूम करो। कमांडो रहीम जल्दी से स्टेन गन लेकर बाहर निकल गया। कुछ देर बाद वो उसी आदमी को साथ लेकर अंदर आ गया। कहने लगा, सर ये अपना आदमी है, शहर की खबर लाया है। इस आदमी ने बताया है कि शहर में सबको मालूम हो गया है कि कश्मीरी मुजाहिदों ने ब्रिगेडियर मुखर्जी की बेटी को अगवा कर लिया है और वो उसके बदले अपने मुजाहिद की बेटी को आजाद कराना चाहते हैं। शिमले के मुसलमान बड़े खुश हैं। मिलिट्री इंटेलिजेंस के आदमी सफेद कपड़ों में सारे शहर और इर्द गिर्द के देहात में फैल गए हैं। पुलिस और फौज ने शिमले से बाहर जाने वाले तमाम रास्तों की नाकाबंदी कर ली है। एक बटालियन फौज भी शिमले में आ गई है।
लोग कहते हैं कि अंबाले से इंडियन कमांडो फोर्स भी शिमले की तरफ चल पड़ी है। हम इस सूरत हाल के लिए बिल्कुल तैयार थे। कमांडो औरंगजेब ने उस आदमी से पूछा, इस इलाके की तरफ तुमने किसी मशकूक आदमी को तो चलते फिरते नहीं देखा? वो बोला, सर हमारे आदमी इस इलाके में मौजूद हैं, अगर ऐसी बात हुई तो हम आपको फौरन खबर कर देंगे। वो आदमी चला गया। कमांडो रहीम कहने लगा, हमारे 2 आदमी कब्रिस्तान के गेट के पास छुप कर पहरे पर मौजूद हैं। वो किसी मशकूक आदमी को इस तरफ नहीं आने देंगे। अव्वल तो फौज का कोई सिपाही इस तरफ नहीं आएगा, अगर कोई आ भी गया तो हमारे आदमी उन्हें वहीं खत्म कर देंगे। कमांडो औरंगजेब ने रहीम से कहा, तुम फौरन शहर में जाकर शम्स ख्वाजा से मिलो, उसे कहो कि हम ब्रिगेडियर मुखर्जी से फोन पर राब्ता कायम करना चाहते हैं। एक तो हमें ब्रिगेडियर के घर का फोन नंबर ला दे, दूसरे हमें ये बताए कि किस जगह से उसे फोन करना मुनासिब रहेगा। जाओ। कमांडो रहीम ने स्टेन गन उतार कर दीवार से लटकाई, कंबल की बुक्कल मारी और कोठरी से निकल गया। मैंने औरंगजेब से इस खदशे का इजहार किया कि ब्रिगेडियर अगर घर पर न मिल सका, और हमने घर वालों से कहा कि ब्रिगेडियर से कहो कि फौरन घर पहुंचे, हम उसकी बेटी के बारे में उससे बात करना चाहते हैं। तो इसी दौरान मिलिट्री इंटेलिजेंस ऐसा इंतजाम जरूर कर लेगी कि ब्रिगेडियर से फोन पर बात करने के दौरान वो मालूम कर लें कि ये फोन कहां से किया जा रहा है। ब्रिगेडियर जानबूझकर फोन पर गुफ्तगू को तूल देगा ताकि मिलिट्री इंटेलिजेंस के आदमी जहां से फोन कर रहे हैं वहां पहुंचकर हमें पकड़ लें। कमांडो औरंगजेब ने कहा, ये बात मेरे जहन में है, लेकिन हमारे सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं। हम वायरलेस पर उससे बात नहीं कर सकते, मजबूरन हमें टेलीफोन का सहारा लेना होगा। ये खतरा मोल लेना ही पड़ेगा, मगर हम मुख्तसर बात करेंगे और हर बार किसी नई जगह से टेलीफोन करेंगे। शिमला बड़ा शहर है, जहाँ इतनी जल्दी टेलीफोन स्पॉट चेक नहीं किया जा सकता। इतने में सुगरा तहखाने से ऊपर आई और कहने लगी, मैंने लड़की को खिला पिला दिया है, वो बेचारी तो बेहद डरी हुई है, बस रोए जाती है। मैंने कहा, उसके रोने पर तरस मत खाना, बस जिस तरह भी हो सके 2-3 दिन तक तहखाने में ही रखना। सुगरा चारपाई पर से एक चादर उठाकर जीने की तरफ जाते हुए बोली, मेरे होते हुए वो न यहाँ से बाहर कदम निकाल सकती है न मर सकती है। हमारे लिए एक एक लम्हा गुजारना मुश्किल हो रहा था। कुदरती तौर पर हम इसलिए बेचैन थे कि हमें जितनी जल्दी हो सके उर्मिला के बाप ब्रिगेडियर मुखर्जी से राब्ता पैदा करना था ताकि बात आगे बढ़ सके। कोई 2 घंटे के बाद कमांडो रहीम वापस आया। वो शिमले में अपने मास्टर स्पाई शम्स ख्वाजा से मुज़ाकरात करके आया था। कहने लगा, शम्स ख्वाजा ने मुझे ब्रिगेडियर के घर का टेलीफोन नंबर दे दिया है और कहा है कि हमें शिमले के बड़े पोस्ट ऑफिस से पहला फोन करना होगा। उसके बाद जरूरी हुआ तो हमें बड़े गिरजाघर के पास जो टेलीफोन बूथ है वहां से फोन करना होगा। उसने ताकीद की है कि हमें इसी तरह जगह बदल बदल कर फोन करना चाहिए, मगर उसने एक बात को सख्ती से हिदायत की है कि ब्रिगेडियर से किसी सूरत भी लंबी बात नहीं करनी होगी और मामला 1-2 टेलीफोन कॉल में तय करना होगा। कमांडो रहीम ने सदरी की जेब से एक कागज का पुर्जा निकाल कर दिया। इस पर ब्रिगेडियर के घर का टेलीफोन नंबर लिखा हुआ था। औरंगजेब ने कागज को संभाल कर रख लिया और कमांडो रहीम से कहा, हम जनरल पोस्ट ऑफिस ब्रिगेडियर के घर फोन करने जाते हैं, तुम यहाँ का ख्याल रखना। हमने कमांडो वाली जर्सियां जो सुबह पहन ली थीं उतार दी, स्याह जॉगर शूज की जगह आम जूते पहन लिए, जैकेट्स भी उतार दी, इनकी जगह एक एक पुरानी गर्म चादर की बुक्कल मार ली। इतना जरूर किया था कि हमने एक एक साइलेंसर वाला ऑटोमेटिक पिस्टल अपनी पतलून की जेब में छुपा कर रख लिया था। मैंने सर पर मफलर लपेट लिया। कमांडो औरंगजेब ने ऊन की बनी हुई टोपी पहन ली। इस तरह हम तहखाने वाली कोठरी से निकलकर उसके पीछे से चक्कर काटकर कब्रिस्तान के सामने वाली सड़क पर आए। बूंदाबांदी रुक गई थी, सर्द हवा चल रही थी। हम बड़े सुकून के साथ आपस में शिमले में बोली जाने वाली डोगरी हिंदी में बातें करते यूं चले जा रहे थे जैसे बारिश रुकने के बाद शहर के बाजार में कुछ खरीदो फरोख्त करने जा रहे हों। कब्रिस्तान से हम एक टीले की चढ़ाई चढ़कर छोटी सी पुख्ता सड़क पर आ गए जो शिमले के छोटे से रेलवे स्टेशन के अकब से होती हुई माल रोड की चौक की तरफ निकल जाती थी। हम डाक खाने पहुंचे तो अंदर 4-5 शीशे के बंद टेलीफोन बूथ बने हुए थे। एक टेलीफोन बूथ खाली था। मैं और कमांडो औरंगजेब बूथ में दाखिल हो गए। हमने शीशे का दरवाजा बंद कर दिया। औरंगजेब ने जेब से वो कागज निकाल कर सामने रख लिया जिस पर ब्रिगेडियर मुखर्जी के घर का टेलीफोन नंबर लिखा हुआ था। फिर उसने नंबर डायल कर दिया और कहा, हेलो, मैं ब्रिगेडियर मुखर्जी से बात करना चाहता हूँ। 1 सेकंड खामोश रहने के बाद औरंगजेब ने पूछा, अगर आप ही ब्रिगेडियर मुखर्जी बोल रहे हैं तो आपको एक जरूरी पैगाम देना चाहता हूँ, गौर से सुनिए। आपकी बेटी उर्मिला मुखर्जी हमारी तहवील में है, उसकी इज्जत आबरू महफूज है। ये बात आपके इल्म में होगी कि श्रीनगर के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल भगत राम ने बुजुर्ग कश्मीरी मुजाहिद हाजी सनाउल्लाह की बेटी परवीन को अगवा करके शिमले के फौजी गैरिजन में पहुंचा दिया है। नहीं नहीं नहीं, खामोश रहें, सिर्फ मेरी बात सुनें, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी बेटी को जिंदा हालत में वापस लेना चाहते हैं तो परवीन को हमारे हवाले कर दें। इस सिलसिले में जगह और वक्त का तयन बाद में कर लिया जाएगा, लेकिन एक बात को गौर से सुन ले, इस मामले में दोनों तरफ से इंतहाई राजदारी से काम लिया जाएगा। अगर आपने मिलिट्री पुलिस या इंटेलिजेंस या कमांडो फोर्स या शिमला पुलिस की मदद लेने की कोशिश की तो हमारा आदमी तो जरूर पकड़ा जाएगा, लेकिन फिर आपकी बेटी उर्मिला भी जिंदा नहीं रहेगी। उसका कटा हुआ सर आपके घर बड़ी जल्दी पहुंचा दिया जाएगा। मेरे दूसरी फोन कॉल का इंतजार करें।
ये कहकर औरंगजेब ने फोन बंद कर दिया और मुझसे कहा, यहाँ से निकलो। हम टेलीफोन बूथ में से बज़ाहिर बड़े इत्मीनान से आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुरा कर बातें करते बाहर निकले। इस तरह बातें करते पोस्ट ऑफिस की लॉबी में मौजूद लोगों के दरमियान से गुजरते हुए जनरल पोस्ट ऑफिस की इमारत से निकलकर सीढ़ियां उतरते माल रोड के चौक में आ गए और फिर बाएं जानिब वाली छोटी सड़क पर हो गए। छोटी सड़क पर आते ही हमने अपनी रफ्तार तेज कर दी। जहां से एक पगडंडी नीचे पहाड़ी ढलान पर उतरी थी, हम उस पर उतर गए। वापस अपनी कब्रिस्तान के पिछवाड़े वाली कोठी में आकर औरंगजेब ने कमांडो रहीम को टेलीफोन पर मुखर्जी से बात की हुई गुफ्तगू के बारे में बताया। ब्रिगेडियर के घर में हमारी राजदार नौकरानी को फौरी तौर पर पैगाम दो कि वो घर में आने जाने वाले लोगों और फौजी अफसरों से टेलीफोन पर की जाने वाली बात गौर से सुनती रहे। हमें हर रात को मालूम होना चाहिए कि ब्रिगेडियर मुखर्जी अपनी बेटी को वापस लाने के सिलसिले में क्या हिकमत अमली तैयार कर रहा है। कमांडो रहीम ने कहा, ये काम हो जाएगा। हमने सारा दिन टब्बे वाली कोठरी में गुजार दिया। इस दौरान उर्मिला को जाकर बता दिया कि उसके पिताजी से बात हो गई है। जिस वक्त परवीन श्रीनगर पहुंचा दी जाएगी, उसे उसके बाप के हवाले कर दिया जाएगा। जब रात का पहला पहर शुरू हुआ तो मैं और कमांडो औरंगजेब ब्रिगेडियर मुखर्जी को दोबारा फोन करने कब्रिस्तान के वीरान इलाके से निकलकर शिमले के बड़े गिरजा के अकब में जो पब्लिक टेलीफोन बूथ था वहां पहुंचे। कमांडो औरंगजेब ने मुखर्जी को फोन किया तो वो घर पर ही था। उन दोनों के दरमियान गुफ्तगू शुरू हो गई। कोई 1 मिनट तक बात होती रही कि कमांडो औरंगजेब ने कहा, मिस्टर मुखर्जी, मैं आपको कल शाम तक की मोहलत देता हूं। अगर कल शाम तक आपने हाजी सनाउल्लाह साहब की बेटी परवीन को अपने खास हिफाजती स्क्वाड के साथ श्रीनगर रवाना न किया तो इसका जो अफसोसनाक नतीजा निकलेगा वो शायद आपसे बर्दाश्त न हो। ये कहकर औरंगजेब ने फोन बंद कर दिया। कहने लगा, ब्रिगेडियर अपनी मजबूरियां बयान कर रहा था कि परवीन उसकी कस्टडी में नहीं है, उसे निकालना उसके इख्तियार में नहीं है। रास्ते में कई मुश्किलात हायल हैं। आप मेरी बेटी को छोड़ दें। आप जितनी रकम कहते हैं मैं आपको दे दूंगा और किसी से जिक्र भी नहीं करूंगा। मैंने कहा, यह बात मेरे जहन में भी वाजे नहीं है कि एक जिम्मेदार ब्रिगेडियर रैंक का अफसर दूसरी रेजिमेंट के हाउस अरेस्ट में रखी की गई लड़की को कैसे निकाल कर श्रीनगर पहुंचाएगा। कमांडो औरंगजेब ने सख्त लहजे में कहा, यह सोचना हमारा काम नहीं है, ये हमारी दर्द-ए-सर नहीं है। एक गैर शादीशुदा नौजवान बेटी का बाप जो अगवा हो चुकी है, उसकी जिंदगी और इज्जत आतिश फिशा पहाड़ के धाने के ऊपर लटक रही है। मैंने उसे कल शाम तक का अल्टीमेटम दे दिया है। मुझे यकीन है कि वो आउट ऑफ द वे जाकर अपनी बेटी की जिंदगी और आबरू बचाएगा। हम जल्दी जल्दी एक टीले की उतराई उतर रहे थे। रात गुजर गई। दूसरा दिन भी ज़हनी कशमकश की हालत में गुजर गया। हम कब्रिस्तान वाली कोठरी में ही छुपे बैठे रहे। जब सूरज गुरूब हो गया और शाम के साए फैलने लगे तो मैं और कमांडो औरंगजेब एक बार फिर ब्रिगेडियर को फोन करने के लिए कोठरी से निकल पड़े। इस दफा हमने शिमले के एक दूसरे इलाके में जाकर पब्लिक टेलीफोन बूथ से फोन किया। ब्रिगेडियर घर पर मौजूद था। मैं बूथ के बाहर खड़ा हो गया। औरंगजेब बूथ में जाकर फोन करने लगा। वो 1 मिनट से ज्यादा फोन पर बात नहीं करता था। इस बार वो आध मिनट के अंदर अंदर फोन बंद करके बाहर आ गया। उसके चेहरे पर इत्मीनान के असरात थे। ब्रिगेडियर परवीन को हमारे हवाले करने पर तैयार है। मैंने औरंगजेब का हाथ पकड़कर दबाते हुए कहा, खुदा का शुक्र है हमारा मिशन नाकाम नहीं हुआ। हम रात के बढ़ते हुए अंधेरे में पहाड़ी टीले के साथ जा रहे थे। अब हमें कल का दिन यानी दूसरा और तीसरा दिन तजस्सुस और तजब्जुब की हालत में गुजारना था। हमने उर्मिला मुखर्जी को कुछ न बताया। दूसरा दिन गुजर गया, दूसरी रात भी गुजर गई। तीसरे दिन सुबह के वक्त हमने कमांडो शेरवान से अपने खुफिया रेडियो ट्रांसमीटर के जरिए राब्ता किया तो उसने इंतहाई मुसरत के साथ हमें ये खुशखबरी सुनाई कि हाजी सनाउल्लाह की बेटी परवीन आज सुबह ठीक 6:10 पर अपने घर खैरियत से पहुंच गई है। कमांडो शेरवान ने मजीद बताया कि उसे 2 औरतें टैक्सी में घर छोड़ गई थी। कमांडो औरंगजेब ट्रांसमीटर पर शेरवान से बात कर रहा था। उससे मैंने भी बात की। उसने मुझे भी मिशन की कामयाबी पर मुबारकबाद दी और कहा, ब्रिगेडियर की बेटी को इंतहाई होशियारी के साथ उसके घर के करीब छोड़ देना। कहीं ऐसा न हो कि मिलिट्री इंटेलिजेंस ने तुम लोगों की गिरफ्तारी के लिए जाल बिछा रखा हो। मैंने कहा, हम मोहतात हैं और तुम वापस मेरे पास आ जाना। एक और मिशन के सिलसिले में तुमसे गुफ्तगू करनी है। मैंने कहा, मैं पहुंच जाऊंगा सर। रेडियो ट्रांसमीटर के सिग्नल बंद हो गए। मैंने कमांडो शेरवान की हिदायत कमांडो औरंगजेब को भी बता दी और वो कहने लगा, हम उर्मिला को अपनी खुफिया कमीनगाह के आसपास नहीं छोड़ सकते, इससे हमारे ठिकाने का सुराग लग सकता है। मैंने कहा, फिर तुम्हारा क्या ख्याल है? औरंगजेब बोला, हम उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर रात के वक्त कोठरी से निकलेंगे और शिमला की मेन रोड पर जाकर छोड़ देंगे। वहां से शिमले का पहाड़ी रेलवे स्टेशन करीब ही है। उर्मिला वहां से घर फोन कर देगी और उसके घर वाले उसे आकर वहां से ले जाएंगे। इस ठिकाने यानी कब्रिस्तान वाले टब्बे की कोठरी में आकर हमने कमांडो रहीम को बता दिया कि उर्मिला को हम आज रात आजाद कर रहे हैं। परवीन अपने घर श्रीनगर पहुंच गई है। कमांडो रहीम ने भी खुदा का शुक्र अदा करते हुए खुशी का इजहार किया। ये मुजाहिदीन कश्मीर और कश्मीरी कमांडोज की बहुत बड़ी फतह और भारतीय गासिब फौज की शिकस्त थी। मैं और कमांडो औरंगजेब नीचे तहखाने में गए और उर्मिला को बताया कि आज रात अपने घर पहुंचा दी जाएगी। खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ गए।
कमांडो औरंगजेब ने कहा कि तुम्हारे फौजी कश्मीर में मुसलमान कश्मीरी औरतों के साथ जो बदतरीन सलूक कर रहे हैं, हमने तुम्हारे साथ वैसा सलूक नहीं किया। अपने बाप को जाकर बता देना कि तुम घर से जिस तरह उठाई गई थी उसी तरह इज्जत व आबरू के साथ वापस आई हो, और कश्मीरी कमांडो ने तुम्हारे साथ शरीफ और बा अखलाक इंसानों जैसा सलूक किया है। बंगाली लड़की ने हाथ जोड़कर कहा, मैं ऐसे ही जाकर कहूंगी। तुम लोगों ने जिस शराफत का सबूत दिया है, मैं इसे कभी फरामोश नहीं करूंगी। तुम लोगों ने साबित कर दिया है कि इस्लाम दुनिया का सबसे आला तरीन मजहब है। हमने ब्रिगेडियर की बेटी उर्मिला से कहा कि वो तैयार रहे, हम रात के शुरू होते ही उसे यहाँ से लेकर चल देंगे। वो सारा दिन भी मैंने औरंगजेब के साथ कमांडो रहीम की कोठरी में गुजार दिया। रात को खाना खाने के बाद हमने तैयारी शुरू कर दी। कमांडो औरंगजेब कहने लगा, कुछ पता नहीं रास्ते में किस किस्म के हालात पेश आ जाएं, हमें अपनी तरफ से थोड़ी बहुत तैयारी करके जाना होगा। कमांडो रहीम बोला, हम आपके साथ चलेंगे। औरंगजेब ने कहा, नहीं, ज्यादा आदमी होंगे तो शक पड़ सकता है, हम दोनों ही काफी हैं। नकाब वाली स्याह कमांडो जर्सियां पहनने की जरूरत नहीं थी, हमने सिर्फ पतलूने और जैकेटें पहन ली थी। एहतियात के तौर पर साथ कमांडो चाकू और ऑटोमेटिक पिस्तौलें मैगजीन भर कर रख ली। रात के 9:30 बज रहे थे जब मैं और कमांडो औरंगजेब ब्रिगेडियर की बेटी को लेकर अपनी खुफिया कमीनगाह से निकले। हमने उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे एक चादर इस तरह उड़ा दी थी कि सिर्फ उसका थोड़ा सा चेहरा ही नजर आ रहा था। मैं उसका हाथ पकड़कर उसके साथ साथ चल रहा था, क्योंकि आंखों पर पट्टी होने की वजह से वो देख नहीं सक रही थी। कमांडो औरंगजेब मेरे पीछे आ रहा था। हम गैराबाद पहाड़ी इलाकों से गुजरते हुए एक खाली सड़क पर ऊपर निकल आए। हमारी एक जानिब जरा नीचे शिमले की माल रोड की बत्तियां जगमगा रही थीं। कमांडो औरंगजेब वहां आकर एक छोटे से रास्ते पर मुड़ गया। यहाँ कुछ फासले पर कोठियां थी जिनमें रोशनी हो रही थी। उर्मिला ने कहा, मेरी आंखों को खोल दें प्लीज। कमांडो औरंगजेब ने कहा, थोड़ी देर इंतजार करो। हम तंग पहाड़ी रास्तों से निकलकर एक और सड़क पर आए। ये थोड़ी कुशादा और पुख्ता सड़क थी। औरंगजेब ने मुझसे कहा, हम इसे वहाँ जो सिग्नल की रोशनी है उसके करीब छोड़ देंगे। फिर उसने उर्मिला से कहा, हम इस वक्त शिमला रोड पर हैं, स्टेशन के करीब आ गए हैं। आगे स्टेशन की सिग्नल की बत्ती है, हम तुम्हें वहां छोड़ देंगे। तुम स्टेशन पर से अपने घर फोन कर देना, वो लोग तुम्हें आकर ले जाएंगे। हम सिग्नल की बत्ती की तरफ चलने लगे। जरा आगे गए तो एक साधु सामने से आकर हमें घूर कर देखते हुए बोला, ये किसकी धर्मपत्नी है बालिक? कमांडो औरंगजेब ने कहा, जाओ बाबा, अपना रास्ता लो। साधु मुस्कुराता हुआ आगे चल दिया। अचानक मुझे याद आ गया कि जिस वक्त हम अपने हाइड आउट से निकलकर पक्की सड़क पर आए थे तो मैंने इस साधु को वहां से भी देखा था। वो एक तरफ बिजली के खंबे के नीचे बैठा जाप कर रहा था, मगर उसने हमारी तरफ बड़े गौर से देखा। मैंने जब इस बात का जिक्र औरंगजेब से किया तो वो रुक गया। उसने पलटकर साधु जिस तरफ गया था उस तरफ देखा, मगर वहां साधु नहीं था। सड़क बिल्कुल सीधी थी और बिजली के खंभों पर बल्ब भी रोशन थे, मगर साधु कहीं नजर नहीं आ रहा था। मेरी छठी हिस्स बेदार हो गई। मैंने औरंगजेब से कहा, दोस्त, मुझे किसी आने वाले खतरे की बू महसूस हो रही है। लड़की को यहीं छोड़कर वापस चलते हैं। मगर कमांडो औरंगजेब को अभी इतना तजुर्बा नहीं हुआ था जितना मैं अपनी कमांडो जिंदगी में हासिल कर चुका था। उसकी छठी हिस्स ने अभी बेदार होना शुरू नहीं किया था। कहने लगा, कोई आम साधु होगा। यहाँ इस किस्म के साधु लोग रास्ते में आम मिल जाया करते हैं। लेकिन मेरी छठी हिस्स यूं ही बेदार नहीं हुआ करती थी। मेरी छठी हिस्स ने मुझे बता दिया था कि कोई जबरदस्त मुसीबत नाजिल होने वाली है। अब कमांडो औरंगजेब मेरे आगे आगे उर्मिला को साथ लिए चल रहा था। हम इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि ये साधु कोई आम साधु नहीं था, बल्कि मिलिट्री इंटेलिजेंस का आदमी था। और उसने जब पहली बार हमें शिमले की ऊपर वाली सड़क पर बिजली के खंबे के करीब से गुजरते देखा तो मिलिट्री हेडक्वार्टर को उसी वक्त वायरलेस के जरिए इत्तला कर दी थी। और उसी लम्हे मिलिट्री कमांडो फोर्स का मुसल्लह दस्ता जीप में सवार होकर शिमला रोड पर पहुंच गया था और उन्होंने हमें घेरे में ले लिया था। और घेरे में लिए सड़क की दोनों जानिब अंधेरे में हमारे साथ साथ आगे बढ़ रहे थे। उन्हें सिर्फ इस बात का इंतजार था कि कब हम ब्रिगेडियर की बेटी को अपने से अलग करते हैं। उसके बाद उन्होंने हम पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देनी थी। लड़की की मौजूदगी में वो हम पर अटैक करने का खतरा मोल नहीं लेना चाहते थे। उन्हें यह भी मालूम था कि हम कोई मामूली आदमी नहीं हैं, बल्कि कमांडोज हैं और हम इस वक्त लड़की को हलाक कर देने की पोजीशन में हैं। मेरे आसाब तन गए थे, क्योंकि मुझे महसूस होने लगा था कि खतरा हर कदम पर हमारे करीब आ रहा है। मैं रह न सका। मैंने औरंगजेब से कहा, लड़की को छोड़ दो, वापस भाग चलो। उसने मेरी बात पर कोई तवज्जो न दी। हम रेलवे सिग्नल की बत्ती के करीब आ गए थे और एक जानिब ऊपर रेलवे लाइन वाली सुरंग की बत्ती भी नजर आने लगी थी। मुझे अपनी दाएं जानिब सड़क के नीचे झाड़ियों में ऐसी आवाजें सुनाई दी जैसे कोई दबे पांव झाड़ियों में चल रहा हो। मैं रुक गया। कमांडो औरंगजेब मुझसे 4 कदम आगे हो गया। वो भी रुक गया। उसने लड़की को कुछ कहा और जैसे ही उसे छोड़कर वापस हुआ, हम पर चारों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। मैं सड़क पर लेट गया। मैंने जेब से पिस्तौल निकालकर दोनों हाथों में ले लिया और दाएं बाएं फायर करने लगा। मैंने देखा कि कमांडो औरंगजेब ने भी पिस्तौल निकाल लिया था और दौड़कर लड़की को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। वो लड़की को आड़ बनाकर वहां से निकलना चाहता था, मगर इस दौरान सामने से एक फौजी जीप मशीन गन का फायर करती तेजी से नमूदार हुई।
दो फौजी छलांग लगाकर नीचे कूदे। उन्होंने लड़की को पकड़कर जीप में डाला और जीप हम पर फायर करती उल्टी चल पड़ी। मैंने कमांडो औरंगजेब को सड़क पर गिरते देखा। शायद उसे गोली लगी थी। मुझ पर दोनों तरफ से फायर आ रहा था। मैंने सड़क पर लेटे लेटे पिस्तौल में नया मैगजीन भरा और जितनी तेजी से हाथों को घुमा सकता था घुमा घुमा कर सड़क के दोनों तरफ अंधेरे में फायर करने लगा। उसके साथ ही मैं उठा और सड़क पर झुककर पीछे की तरफ दौड़ पड़ा। किसी फौजी ने चिल्लाकर कहा, तुम हमारे घेरे में आ चुके हो, हथियार फेंक कर हाथ खड़े कर दो। मेरे पिस्तौल के मैगजीन में अभी काफी गोलियां थीं। मैं फायर करता गया और सड़क पर दाएं बाएं होकर भागता चला गया। सड़क के नीचे झाड़ियों के अंधेरे में इसलिए नहीं जा रहा था कि फायर उसी तरफ से हो रहा था। ऊपर झाड़ियों में से मशीन गन का ब्रस्ट मेरे बिल्कुल करीब सड़क पर पड़ा। मैं समझ गया कि ये लोग मुझे जिंदा पकड़ना चाहते हैं, वरना भारतीय फौज जो यकीनी तौर पर कमांडो फोर्स थी, इतने अनाड़ी नहीं थे कि टारगेट 10 कदमों के फासले पर हो और वो निशाना न लगा सकें। गोलियां मेरे दाएं बाएं, ऊपर और पीछे पड़ रही थीं। साथ साथ मेगाफोन पर मुझे हथियार डालने के लिए कहा जा रहा था। कमांडो दुश्मन की जद में आ जाए तो आमतौर पर उसे हलाक करने की बजाय जिंदा पकड़ने की कोशिश की जाती है, क्योंकि एक कमांडो से बहुत सी मुफीद मालूमात हासिल हो सकती हैं। मैंने भी दुश्मन के हाथ न आने का फैसला कर लिया हुआ था। जब मुझे यकीन हो गया कि ये मुझे मारना नहीं चाहते तो मैंने सड़क पर पीछे की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। अब सामने से एक ब्रस्ट आया जो मेरे बिल्कुल आगे आकर पड़ा। मैं समझ गया कि ये लोग मेरी टांगों पर ब्रस्ट मारकर मुझे जख्मी करके गिराना चाहते हैं। पहाड़ी सड़क बिल्कुल ऐसी थी जैसी मरी की माल रोड है। सड़क एक तरफ को मुड़ गई। मैं दौड़कर आगे गया तो अचानक से एक फौजी जीप की तेज रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ी और जीप इतनी तेजी से आई जैसे मेरे ऊपर चढ़कर मुझे कुचल देगी। जीप के अगले टायर का बम्पर लगा और मैं गिर पड़ा। सर उठाकर देखा, 4 फौजी जवान स्ट्रेन गन्ने ताने मेरे ऊपर खड़े थे। मैं अब कुछ नहीं कर सकता था। मेरा पिस्तौल छीनकर उसी वक्त मेरे हाथ पीछे बांध दिए गए। मेरी तलाशी ली गई। मेरे पास जो कुछ था सब निकाल लिया गया और मुझे घसीटते हुए जीप में डाल दिया गया। 2 फौजी मेरे दाएं बाएं मुझे दबोच कर बैठ गए। जीप ऊपर शिमले के मेन बाजार की तरफ तेजी से बढ़ी। इस दौरान पहलू की जानिब झाड़ियों से दूसरे फौजी भी बाहर निकल आए। उनकी जीप जरा आगे खड़ी थी। ये जीप भी हमारे पीछे पीछे चल पड़ी। मैं भारतीय फौजियों का कैदी बन चुका था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।